Hello everyone, a very fresh morning to all. So, how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So, welcome again EVS class. After 5 days vacation, we are back to study. Okay? So, I hope आपने सब ने जन्माष्टमी एंजॉय किए होंगे. ओके सो जन्माष्टमी कृष्ण का जन्मदिन रहता है. सो हमने सब ने सेलिब्रेट किया, 5 डेज़ वेकेशन एंजॉय किया. ओके सो अभी आपके मूड फ्रेश हो गया. ओके सो वी आर बैक टू स्टडी. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर्स ऑफ टर्म 1. ओके सो टर्म 1 में 8 चैप्टर्स है. ओके टर्म 1 में 4 प्लस PA1 का सिलेबस लिया जाएगा. क्लियर? सो इन EVS देर आर 8 चैप्टर्स विल कम ऑन टर्म 1. ओके सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 रिविजन. ओके सो we learned about types of plants. Okay so there are many types of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Okay so plants कैसे रहते हैं? कुछ plants looks big and कुछ plants look small. Okay so we are going to start our chapter. Okay so based on the size and the type of stem, plants are of different types. Okay so we learned there are 5 types of plants in our chapter. Okay so one is trees, second one is shrubs, third one is herbs, फोर्थ वन इज़ क्लाइंबर्स एंड फिफ्थ वन इज़ क्रीपर्स. ओके सो फुल आपको डिटेल में ये जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का बनाई थी. ओके इसमें भी मैं डिटेल में समझाऊंगी. ओके so there are 5 types of plants. Okay so some are big, some are tall, some are short, some are मतलब huge. Okay so huge trees जो बड़े दिखते हैं ऑलमोस्ट हम उनको ट्रीज ही बोलते हैं. जो उनसे थोड़ा मीडियम रहता है हम उनको प्लांट्स बोलते हैं, और उससे भी कम रहता है उसको हम बोलते हैं बेबी प्लांट. ओके आई एम गोइंग टू शो यू दिस. ओके सीड. ओके फर्स्ट हम सीड को सॉइल में डालते हैं. ओके नेक्स्ट इट ग्रोज इनटू रूट्स, है ना. और रूट्स रेडी करता है. जब सीड ओपन होती है तो रूट्स रेडी होते हैं. देन रूट्स स्टेम रेडी होता है विथ लीव्स. ओके देन इट बिकम्स प्लांट. ओके सो दिस इज कॉल्ड बेबी प्लांट and this is called big plant. Okay so seed grows into root, roots grows into stem, stem grows into leaves, leaves grows into fruit, fruit grows into flower. Okay so trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. Okay so how we identify how tree looks? Okay I'm going to explain you. Okay so trees, some plant are big and tall. They have strong and woody stems called trunks. Such plants are called trees. Examples are banyan, neem and mango trees. But I have given you many examples. Okay so I am going to show you trees. Okay this is mango tree, this is apple tree and this is banyan tree. You all know banyan tree lives long years. ये 200 से 300 years तक ये जिंदा रहता है, मतलब जल्दी टूट के नहीं गिरता है बनियान ट्री. ओके सो आपको और एक बात, ट्रीज़ हमें कट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ट्रीज़ आर शेल्टर ऑफ बर्ड्स. ओके ट्रीज़ के ऊपर कितने सारे बर्ड्स अपना होम बना के रहते हैं. ट्रीज़ हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं, फूड भी देते हैं. ओके इवन छाँव भी देता है. आपको पता है गर्मी में कभी आप घूमने गए होंगे तो पता होगा ट्री के नीचे खड़े होंगे. ओके तो ट्री इतना हेल्प करता है हमारे लिए तो हम
ट्रीज क्यों कट करते हो, है ना? वी शुड नॉट कट ट्रीज, ओके? वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स इन आवर होम्स, ओके? सो दिस इज banyan tree, okay? So I am going to show you this one, okay? This one is called trunk, okay? So only big tree को ही trunk बोलते हैं, बाकी plants को stem बोलते हैं, okay? These are branches, okay? Trees have many branches. These are all called branches, okay? So I am going to show you branches. See, this one, these are branches, okay? Trees have many branches, also many leaves, okay? So see, this is trunk, okay? So these are leaves, and ये जो दिखता है आपको, these are called branches, okay? So next move to about shrubs, okay? Shrubs हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Some plants are small, they have woody stems. Such plants are called shrubs. Example, rose, tulsi and hibiscus plants. ओके, तो shrubs कैसे दिखते हैं? shrub bushy दिखते हैं. bushy मीन्स एकदम अच्छे से फैला हुआ, ओके? तो shrub ट्री से थोड़ा छोटा रहता है, ओके? See, these are shrub examples, which are hibiscus, tulsi and rose. ओके, सो आप कैसे दिख रहा है, देखो आपको कितने ब्रांचेस से और कितने अच्छे से फैला हुआ रहता है. इसको हम बोलते हैं बुशी, ओके? सो श्रब प्लांट्स को हम बुशी प्लांट्स भी बोलते हैं. इवन तुलसी इज होली प्लांट. आपको पता है, इन इंडिया हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, है ना? सो आप ये सब ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ओके? सो श्रब का एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस, तुलसी एंड रोज. क्यों हम इनको श्रब बोलते हैं? बिकॉज दे हैव वुडी स्टेम, ओके? सो वुडी स्टेम, सॉफ्ट स्टेम नहीं रहता है, दे हैव वुडी स्टेम. सी, दिस इज स्टेम, ओके? They have woody stem, that's why we call them shrubs. Clear? So next move to herbs, okay? Some small plants have soft stems. Such plants are called herbs. Examples, mint and coriander plants, okay? So I have taken spinach. Spinach also called herbs, okay? So how it looks, see. This is very different, okay? This is called stem, soft and green stem, okay? So next show you, see this one, okay? This is called stem, okay? So how it looks? It looks soft and green stem. That's why we called it herbs. Clear? So next move to climbers. Climbers, how we identify this is climber, okay? So climbers, some plants have weak stems and they need the support of other plants, walls or sticks to grow upright. Such plants are called climbers. Examples, money plant and grapevine, okay? So you see this, आपके सबके घर के में मनी प्लांट होगा ही. ये ऑल्सो वीक स्टेम रहता है. इधर दिख रहा है आपको स्टेम, ओके? सी, ये भी वीक स्टेम रहता है, ओके? विदाउट सपोर्ट इट कुड नॉट ग्रो, ओके? सो दे नीड सपोर्ट, ओके? सो मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन मीन्स क्लाइंबर्स प्लांट्स. एवरी क्लाइंबर्स प्लांट्स नीड सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक्स और अदर प्लांट्स, राइट? सी, grapevine, see, है ना? It takes support. This is tree and it takes support of stick, okay? So next move to creepers. How creepers looks? See this. Some plants have weak stems and grow along the ground. They are called creepers. Examples are watermelon and strawberry, okay? There are many examples I have given in last video, okay? So creepers also have weak stems. See, this is stem,
ओके। सो आप सोचते होंगे ओनली क्लाइंबर्स को क्यों सपोर्ट देते हैं, क्रीपर्स को क्यों नहीं? बिकॉज क्लाइंबर्स जो फ्रूट्स है वो स्मॉल रहते हैं, नॉट टू मच बिग रहता है। बट क्रीपर्स के एग्जाम्पल, सी वाटरमेलन हाउ बिग इट इज़, ओके। सो वी आर नॉट एबल टू गिव देम सपोर्ट, ओके। अगर हम सपोर्ट देने जाएंगे तो फ्रूट्स नीचे गिर जाएगा, इतना हेवी रहता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ओके। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स को हम सपोर्ट नहीं देते हैं, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड्स। क्लियर? Next I am going to tell about water plants, okay. Also I explained water plants and जो डेजर्ट में उगते हैं वो भी प्लांट्स मैंने एक्सप्लेन किया था। अब पिछले वीडियो में जाएंगे, चैप्टर 1 में आपको मिलेगा, ओके। सो लोटस मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। वो वाटर में उगते हैं, दे डू नॉट नीड सॉइल और ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके। सो दे ग्रोज ओनली इन वाटर, ओके। सो उसका सिर्फ सनलाइट चाहिए और सिर्फ वाटर में वो उग जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर लोटस एंड लिली, ओके। सो दीज आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट मूव टू डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट मीन्स जो रेती रहती है, लाइक राजस्थान में आप कच्छ में जाते हो, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस पे ये प्लांट्स उगते हैं, कैक्टस, ओके। इसको हम कैक्टस बोलते हैं, कैक्टस वहीं उगते हैं, ओके। दे डू नॉट नीड वाटर, दे नीड ओनली डेजर्ट एंड सनलाइट। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट डू प्लांट्स नीड? ओके, प्लांट्स जब उगते हैं, लाइक हम जब ग्रो करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एयर चाहिए, फूड चाहिए और क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए, ओके। ऐसे ही प्लांट्स को उगने के लिए भी कुछ थिंग्स चाहिए उनको, तभी वो उगेंगे। बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर, ओके। सो व्हाट डू plants need? Plants need soil, okay. This one, soil. Plants need soil to grow and they need air. Also they need sunlight and water, okay. So plants को grow करने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर, सॉइल एंड सन। इसमें एक भी नहीं रहेगा तो प्लांट्स अच्छे से नहीं उगेंगे, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ओके। सो वी लर्न टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. Also we learned what plants need to grow, okay. So plants need to grow water, air, soil and sunlight, okay. So next move to parts of plants, okay. सो लाइक हमारे जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, पता है हम ह्यूमन से वी हैव बॉडी पार्ट लाइक हैंड्स, आईज, माउथ, नोज एंड लेग्स, है ना, उसका अलग ही यूज़ होता है। वी यूज़ हैंड्स टू ईट एंड राइट समथिंग, वी यूज़ माउथ टू ईट फॉर एंड टॉकिंग एंड वी यूज़ आईज टू सी, we use nose to smell and we use legs to run या फिर walk and play, okay. Also plants have parts, okay. Without parts they cannot grow, okay. So first part is root. What is the work of root? ओके, सो व्हेन हम सॉइल में जब सीड डालते हैं इट ग्रोज इनटू रूट। तो रूट का क्या काम है? इट इज़ द पार्ट दैट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड। इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट्स, ओके। जो ये रूट का क्या काम है, वो वाटर लेता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जरूर रहता है प्लांट्स को, वो न्यूट्रिएंट रूट लेता है, लेके वो कहाँ पहुँचा देता है? स्टेम को,
ओके। तो रूट कहाँ पास ऑन करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टेम तक पहुँचा देता है, ओके। तो अभी स्टेम का क्या वर्क है, ओके। सो स्टेम कैसे यूज़ करता है, इट इज़ द पार्ट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो देखिए जैसे रूट ने सेंड किया न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड वाटर, तो कौन कैरी करता है, स्टेम कैरी करता है, ओके। तो स्टेम कैरी करता है, स्टेम किसको पहुंचा देता है वो हम जानेंगे, ओके। स्टेम का वर्क होने के बाद हम जानेंगे लीफ के बारे में, ओके। सी लीफ, ओके। लीफ का क्या काम है, इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। मतलब ये लीफ मम्मा जैसे हो गया है ना। सो लाइक रूट ने मतलब खाना पहुंचा दिया, स्टेम ने कैरी किया, ओके। तो लीफ का क्या काम है, जैसे मम्मा हमारे घर में सबके लिए खाना बनाती है ना, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा के लिए, बहन भाई के लिए, आपके लिए, तो लीफ वही काम करता है। वो क्या काम करता है, इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये सब के लिए फूड बनाता है लीफ, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू फ्लावर। फ्लावर का क्या वर्क है, फ्लावर इट इज़ द पार्ट दैट प्रोड्यूस फ्रूट। दिस इज कैप्सिकम ट्री, ओके। सो फ्लावर का क्या काम है, फ्लावर इट इज़ द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, क्लियर। सो नेक्स्ट फ्रूट का क्या काम है, फ्रूट का भी कुछ काम होगा ना, ओके। सो दिस इज फ्रूट, ओके। सो फ्रूट का क्या काम है, फ्रूट इट इज़ द पार्ट दैट हैज सीड्स, ओके। जो फ्रूट्स के अंदर रहता है वो है सीड्स। वी गेट सीड्स फ्रॉम इनसाइड फ्रूट्स, ओके। अब फ्रूट देख सकते हो, घर में कोई भी फ्रूट है तो उसके अंदर देखिए सीड रहता है, ओके। तो वो सीड हमें फ्रूट्स के अंदर मिलता है, ओके। सो वापस हमने यहाँ पे सीड डाल दिया, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। वाटर जैसे वाटर साइकिल रहता है वैसे प्लांट्स का साइकिल चलता रहता है, ओके। वी गेट सीड्स इनसाइड फ्रूट्स एंड वी पुट seed in soil and seed, we put seed in soil, so seed grows into root, again cycle start, and root grows into stem, stem grows into leaves, leaves grows into flower, flower grows into fruit, okay. One is missing, I am going to show you, ये हमारे चैप्टर में नहीं है, this one is called bud, okay. so flower बनने से पहले bud तैयार होता है, okay. so bud ही flower बन जाता है, bud becomes flower, flower becomes fruit, clear, okay. so our chapter explain is completed, so I am going to give you some homework in revision sheet, okay. so वो आप complete कीजिए, okay. so bye, have a nice day children. So children, I have explained chapter 1. So today we are going to do homework in revision sheet, okay. So this is your revision sheet, okay. So I am going to start from MCQ, okay. So these plants have woody and hard stems. Which are they? Shrubs. So our answer is shrubs, okay. So second one, this plant have more than one branch. Which are they? Trees, because trees are big and tall and they have many branches, okay. So third one, this is an example of herb plant. So our answer is mint and coriander are example of herbs, okay. So fourth one, these plants grow along the ground. Which are they? Creepers, because creepers have weak stem, they grow along the ground, okay. So fifth one, we get cloths from cotton plant, okay. So cotton से हमारे cloths बनते हैं, जूट का हम cloths नहीं पहनते हैं, okay. जूट also gives us fibrous, but उससे हम bags वगैरह बनाते हैं, okay. So sixth one, plants make the air fresh and clean.
सो हमें प्लांट्स फ्रेश एंड क्लीन एयर देता है. ओके, सो 7th one, wood is used to make furnitures. Okay, and 8th one, tea leaves is used to make tea. यस, टी लीव से हम टी बनाते हैं ना, कॉफ़ी जूस नहीं बनाते हैं. ओके, सो 9th one, blank is called protective food. So our answer is apple, because protective food protect us from falling ill. So examples, fruits, nuts and vegetables. Okay, so next move to second page. 10th one, blank collect nectar from flowers. So honeybees. Okay, so honeybees takes nectar from flowers, then they make their house. We called it beehives. Okay, so 11th one, this animal lives in a hole. Which animal? Of course, mole lives in hole, but snake also lives in holes. Okay, so next, it eats only grass. So rabbit, because rabbit is herbivorous, it eats only plants. Okay, so third one, jackals and vultures are called herbivorous, carnivorous, scavengers. यस, सेवेंजर्स मीन्स जो कचड़ा, मतलब जो मरा हुआ प्राणी को खाते हैं ना, वो एनिमल्स, उसको सेवेंजर्स भी बोलते हैं. ओके, कार्निवरस भी बोलते हैं, बट वो अर्थ को क्लीन करने के लिए वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, सो हम उनको सेवेंजर्स बोलेंगे. ओके, सो 14th वन, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जो फॉरेस्ट में रहता है हम उसको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. ओके, सो 15th वन इज रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, है ना. सो वी शुड डू एक्सरसाइजेस एंड योगा रेगुलरली, है ना, इससे हमारे मसल्स, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके, 16th वन, वी शुड टेक फूड एट ब्लैंक टाइम. डे टाइम, नाइट टाइम, नो, प्रॉपर टाइम, बिकॉज डे नाइट में भी प्रॉपर टाइम रहता है. ओके, मैंने बोला था ब्रेकफास्ट 8 to 9, लंच 12 to 1 एंड डिनर 7 to 8. ओके, सो वी मस्ट टेक फूड एट प्रॉपर टाइम. ओके, तो 17th, वी मस्ट eat fresh and clean food, क्योंकि हमें फ्रेश भी खाना है और क्लीन भी नहीं खाना है. ओके, स्टेल फूड हमें नहीं खाना है. ओके, बासी खाना. ओके, सेकेंड 8th वन, वी वेयर स्वेटर एंड कैप इन विंटर, है ना. विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, समर में नहीं. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड पेज. ओके, there are 20 MCQs in revision sheet. Okay, so today we are going to complete these MCQs. Okay, so the framework of bones is called, because it's not visible, this question is not visible. Here is our question. The question I am going to read. The framework of bones is called, क्या कहते हैं? Skeleton. Clear? Okay, next 20. Houses made of mud and straw are called kacha house. Okay, so this is your today's homework. So complete this homework in revision sheet. Okay, still then take care. Bye everyone. Have a nice day.